Welcome to digital platform of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. Dear friends, we are discussing the subject power plant engineering. The subject code is KME 076. I am Dr. Tarun Kumar Gupta, Associate Professor in Department of Mechanical Engineering, GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Today our 8th lecture. Today we will discuss supercritical and fluidized bed boilers, boiler mountings and accessories. Right. First of all, we will discuss about supercritical boilers. So, we have introduction to supercritical boilers. Do you know what is critical pressure? Dear friends, because pressure below the critical pressure is known as subcritical pressure and pressure below the critical pressure is known as supercritical pressure. So, we must know what is critical pressure or what is critical point. Critical point in water vapor cycle is a thermodynamic state where there is no clear distinction between liquid and gaseous state of water. Water reaches to this state at a critical pressure at 22.1 megapascal and 374 degrees centigrade. Remember these two, pressure is 22 megapascal and temperature is 374 degrees Celsius. If pressure and temperature are below this prescribed limit, the pressure is known as subcritical pressure, and if pressure temperature are above this limit, it is known as supercritical pressure. Right. So, this is the limit where or the limit or the point which is known as critical point where the water convert into gaseous state without boiling. Remember friends, water convert into gaseous state without boiling, right. We will understand this with the help of a diagram. Before that, you must know what is supercritical pressure. I have already told you that the working pressure above critical point is known as supercritical pressure, and for water it is above the pressure 22.1 megapascal and temperature 374 degrees Celsius. All the boilers working in this pressure and temperature are known as supercritical boilers. Means जो भी boiler इससे ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा 22.1 मेगापास्कल और टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जनरेट करेगा, उस बॉयलर को हम कहेंगे सुपर क्रिटिकल बॉयलर. राइट. अब व्हाट इज द नीड ऑफ सुपर क्रिटिकल बॉयलर? क्यों ज़रूरत है सुपर क्रिटिकल बॉयलर? मैंने अभी आपको बताया कि एट सुपर क्रिटिकल स्टेज और एट सुपर क्रिटिकल प्रेशर वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम विदाउट बॉइलिंग. व्हाट इज इट मीन्स? It means there is no need of latent heat of evaporation. Latent heat of vaporization नहीं चाहिए. Means latent heat of vaporization is zero, completely zero, and I can say that there is no difference in the density of water and steam. You can understand this with the help of this diagram. There is a diagram which is known as TS diagram, or you can say temperature entropy diagram. Clearly you can see there is a temperature and on the horizontal axis, x-axis there is entropy. Right. Now friends, I have drawn this diagram for water. You can see there is a dome shape, right. In this dome shape, this line represent saturated liquid, and it means इससे इस तरफ सारा liquid है, there is a liquid, right. And friends, this line is known as सैचुरेटेड वेपर लाइन. मीन्स इससे इस तरफ सारी वेपर स्टेट और गैसियस स्टेट है. हियर देयर इज कंप्लीटली लिक्विड, हियर देयर इज कंप्लीटली गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट. सो इन बिटवीन दिस देयर इज ए फेज चेंज, मीन्स बॉइलिंग. देयर इज ए फेज चेंज और यू कैन से देयर इज ए बॉइलिंग. सो latent heat of vaporization or latent heat of evaporation is required to convert the phase from liquid to the gaseous state. Remember, from liquid to the gaseous state. Now you can see pressure is given here, it is 100, it is temperature 100, 200, 300 and so on. Entropy is also mentioned here.
So you can see at 100 degrees Celsius, when water is at 100 degrees Celsius, so this much is the amount of latent heat is required. So this amount of latent heat is approximately 2257 kilojoule per kilogram, means 2257 kilojoule per kilogram. This much amount of heat or this much amount of energy is required just to convert water into the steam, or just to convert the phase, liquid phase to the gaseous phase. So, dear friends, as we are going to increase the temperature, you can say this distance between the liquidus line, distance between the vapor lines means saturated liquid and saturated vapor line. So, this distance becomes less. It means latent heat of vaporization की जो है वो कम होती जा रही है, and you can see at this point this point is known as critical state point, means at this point you can see there is no requirement of latent heat of evaporation, means here water directly convert into the gaseous state without boiling, and this pressure is 374 degree. Remember, this pressure is 374 degrees Celsius, this pressure. Now, all the boilers which work above this point are known as supercritical boiler. The boiler working below this point are subcritical boiler, and the boiler working at this point is known as critical boiler. Similarly, pressure above this state, critical state, is supercritical pressure. At this point it is critical pressure, and below this point it is subcritical pressure, right. Now, introduction to fluidized bed boiler, FBC. What is, so before discussing fluidized bed boiler, you must know what is fluidized bed. Fluidized bed होता क्या है? So, fluidized bed is a bed of solid particles where all the solid particles behaves like a fluid. How is it possible? Solid particles हैं, fluid की तरह कैसे behave करेंगे? Right? सोचना है ना? This is the point. एक solid particles fluid की तरह कैसे behave करेंगे? Dear friends, there is a technology. If solid particle can behave like a fluid, that is known as fluidized bed. And the boiler where we are doing this, we are burning the solid particle like fluid, that boiler is known as fluidized bed boiler. We will discuss this in detail. First of all, what is the principle of fluidized bed combustion, or you can say fluidized bed boiler, right? So, combustion हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बॉयलर का काम है स्टीम को जनरेट करना, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना. इट इज़ अ फर्नेस, इट इज़ अ कंबस्शन वेयर heat release from the chemical or heat release from the fuel. So, here you can see when a gas is passed through a packed bed of finely solid particles, you can assume that there is a bed and उस बेड के ऊपर बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, रखे हुए हैं. सो बॉटम से आपने क्या किया, थोड़ी सी गैस यानी एयर और कोई भी गैस विच इज़ हेल्पफुल इन बर्निंग, वो गैस आपने पास की. जैसे ही आप गैस पास करेंगे, देयर इज ए प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द बेड. ध्यान रखिए, देयर इज ए प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द बेड. नाउ इफ द वेलोसिटी ऑफ गैस इज वेरी लो, क्या होगा? इफ द वेलोसिटी ऑफ गैस इज वेरी लो, प्रेशर ड्रॉप इज वेरी स्मॉल, राइट. एंड it may be so small that it may not be disturb the particles lying on the bed. बेड पर जो पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, हो सकता है वो उनको डिस्टर्ब भी ना करे. नाउ यू ट्राई टू इंक्रीज द वेलोसिटी. आप धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज करते जाइए. जैसे जैसे आप वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, क्या होगा? ये जो एयर आप पास कर रहे हैं, गैस आप पास कर रहे हैं बेड से, वो गैस जो भी वहाँ पर फ्यूल पड़ा हुआ है या जो भी पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स, उन सॉलिड पार्टिकल को धीरे धीरे डिस्टर्ब करना शुरू कर देगी. डिस्टर्ब करना क्यों शुरू करेगी? बिकॉज वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, प्रेशर ड्रॉप शुरू हो जाएगा, और उस प्रेशर ड्रॉप से वो जो सॉलिड पार्टिकल्स वहाँ पर हैं, वो सॉलिड पार्टिकल्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे. नाउ यू इंक्रीज द वेलोसिटी, थोड़ा सा और इंक्रीज करिए, ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी, थोड़ी और इंक्रीज करिए, ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी. एंड वन स्टेज कम्स व्हेन यू कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, one stage comes when the particles lying on the bed, they will float in the gas, they will suspend in the gas. So, when
the particles start suspending in the gas. That state is known as fluidized bed. Means that those solid particles behave like a fluid. They are mixing in the gas. Their behavior is like a fluid. So burning of the fuel in this state is called fluidized bed combustion. Understand? You just increase the velocity of the gas, you just increase the velocity of air. जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे जो बेड है, बेड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट शुरू हो जाएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब वो सारे के सारे बेड से उठ करके एयर में सस्पेंड हो जाएंगे, गैस में सस्पेंड हो जाएंगे, एंड दे विल बिहेव लाइक ए फ्लूइड. दैट इज नॉन एज फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्शन. राइट. अब बात करते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर की. ये जो फंडामेंटल है, ये जो प्रिंसिपल है फ्लूइडाइज्ड बेड का, इससे हम कैसे एडवांटेज लेते हैं और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए, आप सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एनी टाइप ऑफ फ्यूल यू कैन बर्न. जरूरी नहीं है कि आपको कोल ही चाहिए. एनी टाइप ऑफ फ्यूल, इवन अगर डोमेस्टिक वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, कोई भी वेस्ट है, आप किसी भी वेस्ट को बर्न कर सकते हैं आसानी से. नाउ फ्रेंड्स, हियर यू कैन सी देयर इज ए डायग्राम ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर. राइट. सी इन दिस बॉयलर, input is the fuel and dolomite which are fed on the distributor plate. First of all, you understand the construction of this boiler. You can see there is a distributor plate. इस distributor plate जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर fuel होता है. Right. This distributor plate have some holes. You can see the holes. और इन holes में से हम air को supply करते हैं. आप कुछ यहाँ पर देखो सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं. These circles are nothing but pipe carrying the water. So this is the input of the water. And this pipe is connected. This is a single pipe of multiple parallel passage, you can say like this, 1 2 3 4 5 6 and so on. So multiple passages are there and this is the output of the steam. Right. Initially what we are doing, we are just supplying fuel and dolomite from this side, fuel and dolomite, and fuel and dolomite come on this distributor plate. Now what we are doing, we are supplying the air from the bottom at high velocity. और वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ध्यान रखना, वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि ये जो पार्टिकल्स हैं फ्यूल के और डोलोमाइट के, ये एयर में सस्पेंड करने लगे, फ्लोट करने लगे. ध्यान रखना, वेलोसिटी कम से कम इतनी होनी चाहिए. राइट. नाउ व्हाट हैपेंड, एक बार फर्स्ट टाइम यू हैव टू क्रिएट द इग्निशन. एक बार आपको इग्निशन स्टार्ट करना है. इसके बाद क्या होगा, इग्निशन विल कंटिन्यू. फ्यूल आप सप्लाई करते रहेंगे, एयर की हेल्प से ये यहाँ पर सस्पेंड होता रहेगा और फ्यूल विल बर्न कंटिन्यूसली. क्लियर. कंटिन्यूसली फ्यूल विल बर्न. सो नाउ व्हाट हैपेंड, फ्यूल विल बर्न. अब देखिए, जब ये जो फ्यूल है, आई टोल्ड यू कि फ्यूल कैन बी लो ग्रेड फ्यूल, लो ग्रेड कोल और डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर वेस्ट, कुछ भी हो सकता है फ्यूल. सो यहाँ पर क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर बन सकती है. सो सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, डोलोमाइट. सो डोलोमाइट विल एब्जॉर्ब सल्फर डाइऑक्साइड. राइट. एंड ये जो इससे स्लैग बनेगा एंड दैट स्लैग इज ट्रैप्ड फ्रॉम द टॉप. आप देख सकते हैं टॉप से स्लैग हटा लेंगे और ये जो फ्यूल बर्न हो रहा है इसकी ऐश जो बनेगी, ऐश को भी हम टॉप से, यहाँ से देयर इज ए पैसेज, सो टॉप से ऐश को हम रिमूव कर लेंगे. नाउ whenever we are using this type of boiler, हमने देखा है, जो एक्सपीरियंस है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में अप्रॉक्सीमेटली 10% सेविंग होती है और कैपिटल कॉस्ट में 15% सेविंग होती है इफ़ वी आर यूजिंग इट फॉर 120 मेगावाट कैपेसिटी पावर प्लांट. सो 120 मेगावाट के पावर प्लांट में जो ऑब्जर्व किया गया है दैट 10% सेविंग इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड 15% सेविंग इन द कैपिटल कॉस्ट. सो इट मे बी मोर फॉर लार्ज कैपेसिटी बॉयलर्स. Now, what are the advantage of using fluidized bed combustion boiler? अब देखिए, fluidized bed combustion has a low combustion temperature, that is approximately 750 degrees Celsius, whereas ordinary boilers which we are using, they are operating at temperature approximately 850 degrees Celsius. So temperature कम है. अभी टेम्परेचर कम होने से क्या होगा, अगर टेम्परेचर कम है सो हीट वेस्टेज कम होगी, हीट रिजेक्शन कम होगी थ्रू वेरियस मोड्स. इसके साथ साथ आपको मेटल्स का पर ध्यान देना है. ठीक है. और पॉल्यूशन कम होगा, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी. ये सब आगे अभी बताते हैं हम आपको. इट हैज़ लो सिंटरिंग प्रोसेस.
It has ability to burn low quality fuel, means agriculture waste, domestic waste, low quality fuel, any type of fuel you can burn here, right. Less production of NOx due to lower temperature. मैंने बताया here the temperature is 750, so temperature कम होगा तो NOx यानी NOx का प्रोडक्शन कम होगा. Now because here we are using dolomite और limestone, so क्या होगा SOx सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इसके जो भी कंटेंट्स होंगे इस ये कम प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज वी आर यूजिंग डोलोमाइट, वी आर यूजिंग लाइमस्टोन. अब नाउ हाउ सल्फर कोल कैन बी बर्न्ड here, and also pollution control is there, right. Now high combustion efficiency. Why high combustion efficiency? Due to 10 times more heat transfer than other combustion process because of suspended burn particle. बाकी बॉयलर्स में क्या था कि जो फ्यूल है दैट इज लाइंग ओवर द बेड और वहाँ से फ्लू गैसेज ट्रेवल कर रही थी. यहाँ पर फ्यूल ही डायरेक्ट एयर में बर्न हो रहा है, ध्यान रखिए फ्यूल ही बर्न हो रहा है. सो फ्लू गैसेज नहीं है, यहाँ पर सीधा फ्यूल बर्न हो रहा है और फ्यूल बर्न होने से जो हीट मिल रही है दे डायरेक्टली सप्लाई टू द वाटर ट्यूब्स. Less area is required due to high coefficient of convective heat transfer, right. So these are the advantage, but whenever there are advantage always there are some disadvantage. अभी disadvantage क्या है? Erosion of the tubes inside the boiler. Yes, ये सबसे बड़ा disadvantage है. ट्यूब का जो मटेरियल है वो इरोड हो सकता है. Uneven temperature distribution caused by clogs on the air inlet of the bed, right. ये एक ड्रॉबैक है. एक और ड्रॉबैक है कि इसको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है स्टार्ट करने में. इन सम केसेस इट विल टेक अप टू 48 आवर्स, मीन्स 48 आवर्स तक का टाइम लग जाता है इसको स्टार्ट करने में, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फर्नेस, डिपेंडिंग ऑन द कोल क्वालिटी और फ्यूल क्वालिटी. सो इट कैन टेक अप टू 48 आवर्स, राइट. सो दैट्स वाई हर जगह पर इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज बॉयलर माउंटिंग्स. अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए पहले बॉयलर माउंटिंग्स एंड बॉयलर एसेसरीज दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट. बॉयलर माउंटिंग्स की अगर हम बात करते हैं, बॉयलर माउंटिंग्स आर दोज फिटिंग्स विच आर नेसेसरी और यू कैन से विच आर मैंडेटरी फॉर द सेफ वर्किंग ऑफ बॉयलर. मीन्स कोई भी बॉयलर वेदर इट इज स्मॉल साइज और इज और ऑफ एनी साइज, कितना ही बड़ा क्यों ना हो और कितना ही छोटा क्यों ना हो, माउंटिंग्स के बिना बॉयलर को परमिशन नहीं दिया जा सकता आपको बॉयलर को रन करने के लिए. इफ़ यू हैव रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट प्रेशर कुकर इनसाइड आवर हाउसेज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द बॉयलर. इवन प्रेशर कुकर कितना भी छोटा हो, अगर 1 लीटर का प्रेशर कुकर भी है, कितना छोटी यूनिट है बॉयलर की, अब देखिए 1 लीटर, अगर 1 लीटर कैपेसिटी का भी प्रेशर कुकर है उसको भी बिना माउंटिंग्स के रन करने की परमिशन नहीं दी जा सकती है, राइट. अब देखिए नाउ कौन कौन सी बॉयलर माउंटिंग्स हो सकती हैं. ऑल द बॉयलर माउंटिंग्स कैन बी डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी इज सेफ्टी माउंटिंग, अदर कैटेगरी इज कंट्रोलिंग माउंटिंग्स एंड थर्ड कैटेगरी इज इंस्पेक्शन माउंटिंग्स. सो जितनी भी माउंटिंग्स हैं सभी माउंटिंग्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और सेफ्टी, कंट्रोलिंग एंड इंस्पेक्शन. अगर मैं सेफ्टी माउंटिंग्स की बात करता हूँ तो 2 तरह की सेफ्टी माउंटिंग्स होती हैं. वन इज सेफ्टी वाल्व्स, अदर इज फ्यूजिबल प्लग. Safety valve can be of various types like dead weight, spring weight, lever type, high steam and low water type. I will discuss about these, right. Controlling mountings की अगर हम बात करते हैं तो water level indicator, pressure gauge, blow off cock, steam stop valve and feed check valve. These are the controlling mountings. And last one is the inspection mountings, manhole and mud holes. Sometimes manhole and mud holes are different. Sometimes manhole and mud holes are the same, right. Now let's say हम बात करते हैं सेफ्टी माउंटिंग्स की. नाउ इफ द साइज ऑफ द बॉयलर इज 3 लीटर 3 किलोग्राम और मोर देन 3 किलोग्राम. 3 kilograms means steam generation capacity. So if boiler is able to generate 3 kilogram per hour steam or more steam, then minimum 2 number of safety valves are necessary. And remember, जो दो सेफ्टी वाल्व में दोनों सेफ्टी वाल्व सेम काइंड के नहीं होने चाहिए. आई रिपीट, बोथ सेफ्टी वाल्व शुड नॉट बी ऑफ सेम काइंड, अलग अलग तरह के होने चाहिए. एंड इफ पॉसिबल वन इज फ्यूजिबल प्लग, अदर इज एनी टाइप ऑफ द सेफ्टी वाल्व.
अब आप कहेंगे सर घर में प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व होते नहीं है, होते हैं, घर में प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व होते हैं। कौन से? एक तो होता है डेड वेट सेफ्टी वाल्व। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेशर कुकर हुज कैपेसिटी इज मोर देन 3 किलोग्राम। ध्यान रखिए, 3 किलोग्राम से कम में आपको एक मिलेगा सिर्फ डेड वेट सेफ्टी वाल्व, 3 किलोग्राम से ज़्यादा में आपको 2 मिलेंगे। डेड वेट सेफ्टी वाल्व भी मिलेगा, फ्यूजिबल प्लग भी मिलेगा। ध्यान रखिए, डेड वेट सेफ्टी वाल्व भी मिलेगा, फ्यूजिबल प्लग भी मिलेगा। डेड वेट सेफ्टी वाल्व कौन सा है? विसल। घर में प्रेशर कुकर होता है, उसके ऊपर एक विसल होती है, जैसे ही खाना बन जाता है विसल ऊपर उठ जाती है और एक अल्टरनेट पैसेज बन जाता है स्टीम को बाहर आने के लिए, दैट इज डेड वेट सेफ्टी वाल्व। उस डेड वेट का नाम इसलिए दिया गया, यू कैन नॉट चेंज द वेट ऑफ दैट वाल्व, सो इट इज डेड वेट, जो वेट फिक्स कर दिया वही रहेगा। एक होता है स्प्रिंग लोडेड। कई बार क्या होता है कि डेड वेट सेफ्टी वाल्व बहुत बड़ा हो जाता है, लेट से बॉयलर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, प्रेशर जनरेशन बहुत ज़्यादा है, सो अगर हम वेट रखेंगे तो बहुत सारा वेट हमें रखना पड़ेगा। सो इसलिए कई बार क्या करते हैं, उस वेट की जगह हम स्प्रिंग लगा देते हैं और स्प्रिंग के प्रेशर से उसको होल्ड करके रखते हैं, राइट। सो अगर इफ़ वी आर यूजिंग स्प्रिंग इंस्टेड ऑफ वेट, इट इज़ नॉन एज स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व। समटाइम वी आर यूजिंग लीवर, सो हम क्या करते हैं, कई बार एक बड़ा सा लीवर लगा देते हैं और उस लीवर में बहुत छोटा सा वेट कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि वो उतना ही इफेक्टिव होता है जितना इफेक्टिव डेड वेट या लीवर स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व है। एक और सेफ्टी वाल्व है विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर लंकाशायर बॉयलर। ध्यान रखिएगा, विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर लंकाशायर बॉयलर, दैट इज हाई स्टीम लो वाटर सेफ्टी वाल्व। इट वर्क, अगर वाटर का लेवल कम हो गया तो भी ये वर्क करेगा और स्टीम का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तब भी ये वर्क करेगा, राइट। और दूसरा है फ्यूजिबल प्लग। ध्यान रखिए, इन चारों में से कोई भी एक का होना ज़रूरी है, इन चारों में से एक लेना ज़रूरी है और एक होगा फ्यूजिबल प्लग। अब फ्यूजिबल प्लग क्या है? फ्यूजिबल प्लग इज ए प्लग विच हैज़ ए मेटल ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, विच हैज़ ए मेटल ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, राइट। जैसे ही मान लीजिए किसी भी रीजन से ये सेफ्टी वाल्व खराब हो गया, वर्क नहीं कर रहा, तो क्या होगा, अंदर प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाएगा ना। जैसे जैसे प्रेशर डेवलप होगा टेम्परेचर विल इंक्रीज। यू एग्री? प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एग्री? ओके। अब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक फ्यूजिबल प्लग है जिसके अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल है, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होगा ये मेटल, ये फ्यूजिबल प्लग मेल्ट हो जाएगा और एक पैसेज बन जाएगा स्टीम को बाहर आने के लिए, एंड बॉयलर विल बी सेफ, प्रेशर कुकर विल बी सेफ। आप प्रेशर कुकर में देख सकते हैं ये फ्यूजिबल प्लग लगा हुआ मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कंट्रोलिंग माउंटिंग्स की। वाटर लेवल इंडिकेटर। वाटर लेवल इंडिकेटर क्या है? वाटर लेवल इंडिकेटर एक ट्रांसपेरेंट पाइप है जिसमें से हमें ये दिखता है कि वाटर का लेवल बॉयलर के अंदर कितना है, जिससे कि अगर मान लीजिए कि किसी भी रीजन से वाटर नहीं आ रहा है और वाटर का लेवल हमें दिख गया कम है, तो हम बॉयलर को शट डाउन कर सकें, स्लो डाउन कर सकें और वी कैन टेक एनी प्रिवेंटिव स्टेप और उसमें वाटर की सप्लाई को कंटिन्यू कर सकें। नेक्स्ट वन इज प्रेशर गेज। व्हाट इज प्रेशर गेज फ्रेंड्स? प्रेशर गेज इज ए डायल विच टेल्स यू अबाउट द प्रेशर ऑफ द स्टीम जनरेटेड। जैसे आप देखते हैं, अगर आप कार में, बाइक में, स्कूटर में टायर में हवा भरवाते हैं और उस हवा भरने के बाद चेक करते हैं, तो वो जो हवा चेक करने वाला है वो एक गेज से चेक करता है, राउंड गेज से, राइट। सो सेम टाइप ऑफ गेज इज यूज्ड हियर, प्रेशर गेज। प्रेशर गेज इज जस्ट इंडिकेट द प्रेशर ऑफ द स्टीम जनरेटेड। इसके बाद डियर फ्रेंड्स हम बात करते हैं ब्लो ऑफ कॉक की। ब्लो ऑफ कॉक बॉयलर में सबसे नीचे वाले पॉइंट पर लगाया जाता है। बॉयलर को कभी भी खाली करना है किसी भी रीजन से, इंस्पेक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे के सारे वाटर को, और स्पेशली बॉयलर में हॉट वाटर होता है, उस हॉट वाटर को किसी मोटर से या बकेट से खाली किया जाए। सो सबसे लोअर पोर्शन पर एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को जस्ट ओपन कर देते हैं और बॉयलर सारा खाली हो जाता है। इसके बाद एक स्टीम स्टॉप वाल्व, स्टीम यूज़ करने के लिए लेना है नहीं लेना है, सो एक वाल्व लगा देते हैं। व्हेन यू ओपन द वाल्व स्टीम विल कम आउट, व्हेन यू क्लोज द वाल्व स्टीम विल नॉट कम आउट। एक और है फीड चेक वाल्व। फीड चेक वाल्व इज यूज्ड टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ द वाटर ऑटोमेटिकली। इट इज ए वन वे वाल्व, वाटर कैन कम इनसाइड द बॉयलर थ्रू दिस बट वाटर कैन नॉट गो आउटसाइड द बॉयलर। ध्यान रखिएगा, इट इज वन वे वाल्व, वाटर बॉयलर के अंदर आ सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता। रिमेंबर, बाहर नहीं जा सकता। इसके बाद बात आती है इंस्पेक्शन माउंटिंग्स की। मैन होल and mud hole. I told you in most of the time manhole and mud hole are the same, but sometimes these may be different. अब manhole क्या है? Manhole is a hole from where a man can enter for inspection or repairing purpose. Friends, आपने सीवर लाइन देखी है गली मोहल्ले में? सीवर लाइन में एक होल होता है, that is known as manhole. उसको मेन होल नहीं कहते, that is manhole. The purpose, man can enter from that. Same is here.
बॉयलर में एक होल होता है, उसमें से मैन अंदर जा सकता है, उसको कहते हैं मैन होल। और मड होल, बॉयलर को साफ करना है, बॉयलर के अंदर स्केलिंग हो गई है, वैसे बॉयलर में हम बिल्कुल वाटर को ट्रीट करके सप्लाई करते हैं, बट किसी भी रीजन से बॉयलर में डस्ट कलेक्ट हो गई है, मड कलेक्ट हो गई, उसको रिमूव करना है, सो एक होल यूज करते हैं, दैट इज नोन एज मड होल। Last one, boiler accessories. Dear friends, boiler accessories are those fittings which used to increase the efficiency of the boiler and these are not mandatory। ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है। अगर आप बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हैं यूज़ करिए, नहीं करना चाहते मत करिए, कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे, और ये कहाँ से ये ऑपरेट होती हैं, इनमें से ज़्यादातर फ्लू गैस से ऑपरेट होती हैं। जो फ्लू गैस स्टीम बना करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके चली गई, उससे यूज़ होती हैं। एयर प्री हीटर इज़ यूज टू प्री हीट द फीड एयर। जो एयर बॉयलर में, बॉयलर की फर्नेस में जाएगी फ्यूल को बर्न करने के लिए, उस एयर को पहले से प्री हीट कर लेते हैं 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, सो दैट वो कम बॉयलर के फर्नेस के अंदर कम हीट एब्जॉर्ब करे। इकोनोमाइज़र इज़ यूज टू प्री हीट द फीड वाटर। जो वाटर बॉयलर के अंदर जा रहा है स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, उस वाटर को थोड़ा सा 3 से 5 डिग्री 3 to 5 डिग्री पहले ही गर्म कर लेते हैं। स्टीम सुपर हीटर, स्टीम जनरेट हुई बॉयलर में, इट मे बी वेट, इट मे बी ड्राई, इट मे बी सुपर हीट, इसको और सुपर हीट करना है तो हम एक एसेसरी यूज करते हैं, दैट इज स्टीम सुपर हीटर। दीज 3 एसेसरीज आर यूज विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेज, राइट। नेक्स्ट वन इज द फीड पंप। फीड पंप इज ए पंप विच सप्लाई द वाटर इन द बॉयलर एट हाई प्रेशर। अब जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, आप जानते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो प्रेशर इंक्रीज होगा तो यस टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन इज इंजेक्टर। इंजेक्टर इज यूज्ड to inject the water into the boiler, it increase the pressure, sometime it can increase the pressure up to 200 bar। and last one is the steam separator। steam separator क्या है, बॉयलर से हम स्टीम लेते हैं यूज करने के लिए, समटाइम्स स्टीम के साथ साथ वाटर पार्टिकल्स भी चले जाते हैं, सो स्टीम सेपरेटर इज ए डिवाइस विच सेपरेट स्टीम एंड वाटर, इट अलाउ ओनली स्टीम टू गो आउट और वाटर को वहीं रिटेन करके बॉयलर के अंदर रोक लेता है, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कोई सजेशन है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।